Hello friends, myself Rasika Pagaria from RM College. In last lecture, we studied the concept of democratic socialism. In that, we studied the nature of democratic socialism. First point is not a complete departure from Marxian socialism. Second point, democratic socialism is a child of modern society. Third, demand reformulation of economic and political liberties, interchangeable use based on relative concept. Today we are going to look at the methods of democratic socialism. The methods of democratic socialism are explained below. Peaceful ways. Since democratic socialism falls in the category of evolutionary socialism, it avoids in all probable ways the techniques of armed struggles or revolution. See, since अभी क्या बोला, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म ये किसके अंदर फॉल होता है? इट फॉल्स इन द कैटेगरी ऑफ इवोल्यूशनरी सोशलिज्म. वी ट्राई टू अवॉइड ऑल द टेक्निक्स ऑफ स्ट्रगल और रिवॉल्यूशन. अपन वी मेक श्योर कि बाबा किधर भी बाबा स्ट्रगल या रिवॉल्यूशन कुछ भी ना हो. वी मेक श्योर. And its account force or coercion is associated with revolution and therefore it should not be used. See, ये क्या है? ये एक फोर्स है जहाँ पे सब लोग इकट्ठा आते हैं, राइट? सब एक दूसरे के बारे में सोचते हैं. तो ये एक फोर्स है, सब एक दूसरे के बारे में सोचते हैं. तो इसका मतलब ये है क्या? यहाँ पे वॉर कुछ होने वाला है. यहाँ पे वॉर कुछ होने वाला है. इसका मतलब ऐसा कुछ होएगा क्या? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है यहाँ पे. We should make sure for this. There are many peaceful ways which can be applied for reaching the goals of socialism. See, यहाँ पे बहुत सारे तरीके हैं. Like there are lot of peaceful ways which can be applied for reaching the goal of socialism. See, ऐसे बहुत से तरीके हैं जो अपन यूज़ कर सकते हैं ताकि अपन अपना गोल अच्छे से अचीव कर सके. That is the goal of socialism can be achieved in a proper way and in a better way. Moreover, coercion means the abduction of freedom of the individuals and such course of action is to be avoided at any cost. See, moreover, coercion means क्या है? ये एक फ्रीडम है, एक इंडिविजुअल का फ्रीडम मिला है जो वो और एक कोर्स ऑफ एक्शन है जो आपको अवॉइड करना है. लाइक एक फ्रीडम, आपकी इंडिविजुअल फ्रीडम क्या है? यहाँ पे थोड़ी कम हो जाती है. लाइक इंडिविजुअल फ्रीडम आपका रिड्यूस हो जाता है और ये कोर्स ऑफ एक्शन वी कैन अवॉइड इट एट एनी कॉस्ट. दिस कैन बी अवॉइडेड एट एनी कॉस्ट. अपने को क्या करना है? यहाँ पे सब हर काम शांति से और समझदारी से करना है, राइट? क्यों करना है ऐसे शांति से समझदारी से काम? तभी अपन अच्छे से कर पाएंगे ना सब कुछ. ना beliefs on reform. The most important peaceful way is the reform. See, the most important peaceful way क्या है? Is the reform. The democratic socialists want to build up socialism within the main structure of capitalism, and because of this they argue for introducing reform. See, the democratic socialists क्या है? They want to build up a socialism. Like उनको socialism बनाना है which will within the main structure like capitalism. ये कैपिटलिज्म है यहाँ पे, उसी के ऊपर आपको डेमोक्रेटिक सोशलिज्म बनाना है. आपको एक सोशलिज्म क्रिएट करना है ताकि सब कुछ पीसफुली जाए. बिकॉज ऑफ दिस दे आर्ग्यू फॉर इंट्रोड्यूसिंग रिफॉर्म्स. इसीलिए क्या कर रहे हैं? दे आर आर्ग्यू फॉर इंट्रोड्यूसिंग रिफॉर्म्स. दे बिलीव दैट इट रिफॉर्म्स इफ they believe that if reforms are unsuccessful implemented, they can produce the result which revolutionary socialism promised to bring forth. अब लोग क्या बिलीव करते हैं? अगर आपको रिफॉर्म को सक्सेसफुल बनाना है, सब कुछ प्रॉपरली इम्प्लीमेंट करना है, तब भी आपको क्या मिलेगा? तब भी आपको एक रिज़ल्ट अच्छा मिलेगा. और ये जो रिज़ल्ट अच्छा जो मिलेगा वही रहेगा जो रिवॉल्यूशनरी से आपको प्रॉमिस किया था. लाइक रिवॉल्यूशनरी सोशलिज्म ने जो प्रॉमिस किया था और जो आप तक आगे बात लाई थी. Moving towards the next point, gradualism. To proceed step by step is another method which has an important place in this form of socialism. See, to proceed step by step.
अगर आपको स्टेप बाय स्टेप जाना है तो ये क्या है, ये एक अनदर मेथड है विच इज़ एन इम्पॉर्टेंट प्लेस इन दिस फॉर्म ऑफ सोशलिज्म। सी, तो प्रोसीड स्टेप बाय स्टेप, ये एक अलग दूसरा मेथड है जिससे क्या है एक इम्पॉर्टेंट प्लेस ले सकता है इन द फॉर्म ऑफ सोशलिज्म। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड ग्रेडुअलिज्म। इसको अपन क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज द ग्रेडुअलिज्म। ग्रेडुअलिज्म कैनॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम रिफॉर्मिस्ट। ग्रेडुअलिज्म क्या है, इट कैनॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम रिफॉर्मिस्ट। बोथ रूल आउट एब्रैक्ट चेंज। सी, बोथ रूल आउट एब्रैक्ट चेंज। ग्रेडुअलिज्म क्या है, इट कैनॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम रिफॉर्मिस्ट, और दोनों क्या है, दोनों जो चेंज है वो छोड़ देते हैं, लाइक दे डोंट केयर। द इम्प्लीकेशन ऑफ ग्रेडुअलिज्म इज इट हेल्प्स पीपल टू रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ सोशलिज्म। द इम्प्लीकेशन ऑफ ग्रेडुअलिज्म क्या है, इट हेल्प्स पीपल टू रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ सोशलिज्म। इसका इम्प्लीकेशन आप करोगे तो क्या है, लोगों को सोशलिज्म का इम्पोर्टेंस पता चलेगा, लाइक दे विल कम टू नो हाउ सोशलिज्म इज इम्पोर्टेंट हियर। It is the belief of the democratic socialism that socialism is not something which can be imposed upon the people. See, ये क्या है, it is the belief of the democratic socialist. ये एक belief है democratic socialist का कि socialism क्या है, सिर्फ it is not something which can be imposed upon the people. Like ये माना जाता है कि democratic socialism क्या है, ये एक socialism है जो आप लोगों पे impose नहीं कर सकते, like ज़बरदस्ती किसी पे थोप नहीं सकते, राइट। दे मस्ट बी प्रिपेयर्ड टू एक्सेप्ट इट फिजिकली और मेंटली। लोग क्या रहना चाहिए, लोग पीपल शुड बी रेडी टू एक्सेप्ट इट फिजिकली एज वेल एज मेंटली। सिर्फ अगर मैं बोलूँ कल से अपन डेमोक्रेटिक सोशलिज्म फॉलो करेंगे तो सोशलिज्म सब जगह रहेगा ये वो, और लोगों की इच्छा नहीं रही, तो आपका बोल के कुछ करके कुछ फ़ायदा है क्या यहाँ पे, नहीं। इन चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं भाई। अगर मैं बोलूँ प्यार से, लोगों को समझा के दो और लोगों की राय पूछूँ तो क्या है, एवरीथिंग, इवन दे विल बी रेडी टू एक्सेप्ट इट। द फॉर्मर मीन्स देयर शैल एग्जिस्ट अ फिजिकल एनवायरनमेंट विच इज़ फेवरेबल टू वेलकम सोशलिज्म। द फॉर्मर मीन्स क्या है, वहाँ पे क्या आता है, देयर एग्जिस्ट अ फिजिकल एनवायरनमेंट। यहाँ पे क्या आता है, यहाँ पे फिजिकल एनवायरनमेंट आता है विच इज़ फेवरेबल, वो फेवरेबल है टू वेलकम सोशलिज्म। पीपल मस्ट ऑल्सो बी मेंटली प्रिपेयर्ड। लोग क्या रहना चाहिए, पीपल शुड बी अ मेंटली प्रिपेयर्ड। नेक्स्ट इज द प्लानिंग। इकोनॉमिक प्लानिंग इंट्रोड्यूस टू स्ट्रीमलाइन प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन इन अ प्लान्ड वे इज एन इम्पॉर्टेंट मेथड ऑफ डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। इकोनॉमिक प्लानिंग विच इज introduced to streamline. Economic planning introduced to streamline production and distribution in a planned way is an important method of democratic socialism. See, ये एक important method है democratic socialism का, लिए प्रॉपर अच्छे से प्लानिंग करने का, प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन सब कुछ प्रॉपरली प्लान होना चाहिए। इट इज़ वन ऑफ द मेथड ऑफ डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। द मैनेजमेंट of production and the distribution of produced commodities are performed through planning. See, the management of production and the distribution of production commodity, like आप जो भी प्रोडक्शन कर रहे हो, जो भी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो कमोडिटी, आर परफॉर्म थ्रू प्लानिंग। ये सब किसके ऊपर चलता है, दिस ऑल इज डन एज पर द प्लानिंग। प्लानिंग इन डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट स्टेट प्लेज अ वेरी क्रूशियल रोल। प्लानिंग क्या है, planning plays a very important role. Because of planning, the management of economic proceeds in a definite and scientific way, and this ensures the attainment of promised goals, especially to proper distribution of wealth, and in this way the reduction of inequality is possible. See, because of planning, see, management क्या करता है, हर एक एक्शन सब कुछ क्या करता है, प्रॉपरली प्लान करता है इन अ डेफिनेट वे, इन अ साइंटिफिक वे, एंड इट मेक श्योर कि वो प्लान के हिसाब से सब कुछ जाए ताकि अपन अपना गोल जो भी प्रॉमिस किया है वो अचीव कर सके। गोल अचीव हो गया, उसके बाद क्या है, जो भी अपने को प्रॉफिट, जो भी अपने पास वेल्थ रहेगी, इट वुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली अमॉन्ग द मेंबर्स। तो क्या है, यहाँ पे क्या है, इनइक्वालिटी क्या है, ये रिड्यूस हो जाती है। द प्रोमिनेंट ऑफ डेमोक्रेटिक सोशलिज्म claims that one of the great curse of capitalism
is the great inequality in income and wealth, and this curse is the product of unplanned economy. See, the prominent of democratic socialism claim क्या बोलता है यहाँ पे, इट इज़ अ ग्रेट कर्स ऑफ कैपिटलिज्म. ये डेमोक्रेटिक सोशलिज्म क्या करता है, कैपिटलिज्म क्या है, ये कर्स है इसके, इज़ द ग्रेट इनइक्वालिटी इन इनकम. कैपिटलिज्म से क्या होता है, एज वी हैव सीन अर्लियर, इनइक्वालिटी रहती है क्योंकि इनकम एंड वेल्थ क्या है, अच्छे से किसी के पास नहीं जाता, सिर्फ एक जन के हाथ में जाता है, एंड यहाँ पे सब कुछ अनप्लान्ड रहता है. डेमोक्रेटिक सोशलिज्म want to save the society from this curse, and because of this reason it forcefully advocate the introduction of planning. See what happened here, this democratic socialism, what it wants to save the society. ये जो सोसाइटी को बचाना चाहते हैं कैपिटलिज्म से, और ये कैसे होगा, ये प्रॉपर प्लानिंग से ये सब कुछ बच सकता है. इफ़ यू डू एवरीथिंग इन इज वेल प्लान, यू कैन सेव द सोसाइटी. By planning, we mean to take decision in a scientific way and then to implement it decisively. See, planning यहाँ पे क्या है, सब कुछ प्रॉपर डिसीजन लेने का इन अ प्रॉपर साइंटिफिक वे, और उस हिसाब से आपके सारे आप आपके काम लो, उस हिसाब से आप बाकी का सब डिसाइड करो. देयर इज़ हार्डली एनी स्कोप ऑफ इंटरवेंशन ऑफ इमेजिनेशन एंड ऑर्थोडॉक्स इन द फील्ड ऑफ इकोनॉमी. यहाँ पे हार्डली कोई स्कोप है कि कोई इंटरफियर करेगा या कोई सोचेगा और ऐसा हो गया तो क्या. हर चीज़ के लिए प्लान किया रहता है, एंड दे आर रेडी फॉर एवरीथिंग. द टेक्निक ऑफ प्लानिंग वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय Istvan Soviet Union in the 30s of the last century, and late on it was emulated by other countries, especially the countries professing socialism at their goal. See, the technique of planning, it was first introduced by East Soviet Union in the last century, 30 के लास्ट सेंचुरी में हुआ था, और फिर बाकी कंट्रीज़ ने भी इसको अपनाया था. स्पेशली socialism was their goal, or they made professing socialism as the goal. After the Second World War, the Labour Party government in UK introduced planning in the same case. See, Second World War के बाद क्या हुआ, after the Second World War, ये जो Labour Party government in UK थी ना, even it started introducing planning in the same case. उन्होंने भी planning किया इसी तरीके से. Proper implementation of schemes and projects. Along with planning, the democratic socialism adopts a very pragmatic step, and this is preparation of scheme and project, and to adopt the right way and the right time for implementation of the scheme and project. See, यहाँ पे क्या बोला है, along with planning, the democratic socialism क्या कर रहा है, it adopts a very एक अच्छा स्टेप लेता है ताकि आप आपकी स्कीम प्रिपेयर करो, प्रोजेक्ट वैसे ये करो, और सही तरीके से अपना काम करो इन द राइट वे एंड इन द राइट टाइम, ताकि आप आपका स्कीम जो भी है इम्प्लीमेंट कर सको. नीडलेस टू से दैट प्लानिंग एंड दिस टेक्निक आर क्लोजली रिलेटेड. सी, प्लानिंग और ये टेक्निक सारी क्या है, एक दूसरे से अच्छे से रिलेटेड है. प्लानिंग investors of taking action in a calculation way so that unforeseen incidents cannot interrupt the functioning of the economy. See, जब वो लोग प्लान करते हैं ना, जब प्लान करते हैं तभी सोच समझ के प्लान करते हैं, तभी सारे कैलकुलेशंस करके रहते हैं. अगर कुछ एकदम से लॉस हुआ, ऐसा कुछ भी इंसिडेंट्स आता है तो वो उसके लिए तैयार रहते हैं, एंड दे फंक्शन एज पर दैट, मतलब टाइम के अकॉर्डिंग उनके पास सब रेडी रहता है, and they do as per the requirement of the economy. For the proper preparation of planning and its implementation, schemes and projects are prepared in a calculation way so that the planner can reach the goals uninterruptedly. See, for the proper preparation of planning, see, प्लान वो इतने अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं, इतना अच्छे से करते हैं कि प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन भी होता है. जो भी स्कीम्स है, प्रोजेक्ट्स है, उनका प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन होता है,
वो लोग सब प्रॉपर अच्छे से कैलकुलेट करते हैं ताकि अपने गोल अपन अच्छे से अचीव कर सकें विदाउट एनी इंटरप्शन. फर्दर is reflected in the scheme and projects and this makes the functions of economy smoother. See, further क्या है कि जो schemes and projects हैं ये भी वो देखते हैं कि बाबा everything goes on smoothly. Next is the compromise. Mention has been made about the fact that democratic socialism is largely based on compromise. See, अपन ने देखा है कि democratic socialism क्या है? It is largely based on the compromise. It accepts nothing as final and absolute. वो कुछ भी accept नहीं करती. ये final हो गया, ये absolute हो गया, ऐसे कुछ नहीं. There is very little scope of dogmatism in democratic socialism. Like डॉगमेटिज्म का बहुत ज़्यादा स्कोप नहीं है, एकदम थोड़ा सा ही स्कोप है यहाँ में. इट ट्राइज टू प्रोसीड इन अ बैलेंस्ड एंड कैलकुलेटेड वे से. अब क्या करते हैं यहाँ पे वो देखते हैं कि एवरीथिंग गोज ऑन इन अ बेटर एंड इन अ कैलकुलेट वे. इन आवर एनालिसिस ऑफ डेमोक्रेटिक सोशलिज्म एज अ रिलेटिव कंसेप्ट वी हैव पोर्ट्रेड द नेचर ऑफ डेमोक्रेटिक सोशलिज्म. सी, अगर अपन एनालाइज करें ऑफ डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, ये क्या है? इट इज़ अ रिलेटिव कंसेप्ट जिसके अंदर अपन वी मेक द श्योर कि बाबा डेमोक्रेटिक सोशलिज्म अपन यूज़ करें एंड वी एनालाइज इट इन अ बेटर वे. वी हैव नोटेड दैट दिस कंसेप्ट हैज़ नॉट कम्प्लीटली रिजेक्टेड आइदर कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट. सी, अपन ने एक चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए, अपन ने क्या किया है? अपन ने कम्प्लीटली रिजेक्ट नहीं किया है, ना ही कैपिटलिज्म को अपनाया है, ना ही सोशलिज्म को अपनाया है, ना ही दोनों को बुरी तरह से रिजेक्ट किया है. वी मेक श्योर कि बोथ वी कैन यूज. इट रिटेन्स कैपिटलिस्ट स्टेट माइनस इट्स कॉन्जर्वेटिव नेचर एंड एक्सप्लॉयटेशन नेचर फंक्शन. अब सोशलिज्म आप अडॉप्ट करते हो तो कैपिटलिज्म से आप बच सकते हो. कैसे बच सकते हो? सी, कैपिटलिज्म से क्या होता है? यू कैन सेव योर सेल्फ फ्रॉम द एक्सप्लॉयटेशन फंक्शन. इट at the same time accept the socialism minus revolutionary method. See, it at the same time ये भी देखता है कि बाबा socialism minus the revolutionary method. Epstein says all successful democratic government is a compromise between public control, efficiencies and private initiative. See, अभी क्या बोल रहे हैं? Epstein says, Epstein क्या बोलता है? जो भी है ऑल सक्सेसफुल डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, जो भी सक्सेसफुल डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या है? इट इज़ अ कॉम्प्रोमाइज़ बिटवीन पब्लिक कंट्रोल, एफिशिएंसी एंड प्राइवेट इनिशिएटिव. इन सब के बीच में आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना है. इन सबको मैनेज करके ही आपको एक गवर्नमेंट सेट करनी है. इट विल टेक एफर्ट एंड थॉट टू वर्क इफ इट आउट्स. अपने को क्या करना पड़ता है? वी आर सपोज टू टेक सर्टन एफर्ट्स, थोड़ा सा उस पर काम करेंगे तभी अपना कुछ होगा. इट अटेम्प्ट्स टू अवॉइड हैस्टी जजमेंट्स एंड अनडाइजेस्टेड सजेशंस. सी, वी मस्ट अवॉइड एनी, किसी पे भी कुछ भी जजमेंट नहीं कर सकते, ना ही कुछ गलत सजेस्ट कर सकते हैं. वी शुड अवॉइड दैट. पहले अपने को स्टडी करना है सब कुछ अच्छे से, राइट? फिर क्या है क्या नहीं समझना है, जानना है. जब आप ये सब अच्छे से कर पाओगे तभी आप कुछ जजमेंट कर पाओगे, तभी आप कुछ सजेस्ट कर पाओगे. Without taking any efforts, without having a thought of everything, you should avoid making any judgment और जो गलत सजेशन, ये सारा आपको अवॉइड करना है यहाँ पे. I think we'll wind up the lecture here. In next lecture, we'll study the features of democratic socialism. Thank you.